Good morning, everybody. Myself Sunita Sinha. Today we are going to start chapter number 10, part 2, Light, Reflection and Refraction. Last class में हम reflection property पढ़े थे. Okay? In this section we discussed about refraction of light. What is refraction of light? It can be understood by some example. Suppose when a thick glass slab is kept on printed letters, it appears raised when it see through glass slab. अगर आप किसी प्रिंटेड लेटर को ग्लास स्लैब के थ्रू देखते हो तो लेटर थोड़ा बहुत अपने साइज से ऊपर दिखेगा. सेकेंड एग्जाम्पल, when a lemon kept in water in a glass tumbler, it appears to be bigger than actual size. अगर आप किसी लेमन को ग्लास में डालते हो तो उसकी साइज लिटिल बिट बिगर देन दिखेगी. What is the reason behind this? These observations indicate that light does not travel in the straight path. That is known as refraction of light. Last section में हमने पढ़ा था light is a electromagnetic radiation which travel in a straight path. But ये कब होता है? जब light एक ही मीडियम में travel करती है. Okay? We have mostly three medium: air, water and glass. जब एक ही मीडियम में लाइट ट्रैवल करती है तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट पाथ. ओके, बट जब आपकी लाइट की मीडियम चेंज होती है, इट मीन्स अगर लाइट आपके एयर मीडियम टू ग्लास मीडियम या ग्लास टू वाटर, वाटर टू ग्लास, तब उसकी पाथ चेंज हो जाती है और इसी फेनोमेना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं. प्रॉपर डेफिनेशन: व्हेन अ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन of light in second medium changes. This phenomena is known as refraction of light. Refraction of light through glass prism. Okay, suppose you have a glass prism, you kept in a white paper. Take a torch and you pass the light with the help of torch. In second time you just see when a torch passes the light, incident light is a straight path. Okay, this one your air medium. When it enter in the glass medium, this one your glass medium. Okay, just see his path is little bit changes. Now in next figure you see when it enter whole glass medium, its path is straight, but in starting path is little bit different. When it come out again in air medium, its path again change. Just see. Okay, it's so that when a light enter from one medium to other medium, the direction of path of light will change. And we understand by ray diagram of refraction of light through glass slab. Okay, this one the ray diagram. Here A, B, C, D is the outline of glass slab. We pass a light E, F, O, O dash and O dash H. Here AB and CD two refracting surface. It means यहाँ से आपका मीडियम चेंज होगा. Suppose AB is a refracting surface. Here EF is the incident ray. Okay, O and O dash is the refracted ray. Just measure this one, angle I1 and angle R1. For this purpose, we draw a perpendicular line N and N dash. That is known as normal ray. When a light enter in CD, CD is the another refracting surface. Okay, for CD, O and O dash is the incident ray and O dash H is the refractive ray. We draw M and M dash as a normal ray. Now the measure angle I2 and R2. This activity show that when light change their medium, its path is also changes. Just see here, if your light travel in a straight path, अगर आपका light travel straight path करता है in any medium, तब आपका path कैसा दिखता है? Just like EF P यानी E to P. बट यहाँ पे आपका EF जब वो दूसरे मीडियम में आता है तो लिटिल बिट बैंड होता है. फिर जब CD के पास आता है, अगेन its medium is changed, so its path is also changes, and that property is known as refraction of light. But why it happen? Refraction of light is due to change in the speed of light as it enter from one transparent medium to another medium. जब आपकी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड भी क्या होती है? इंक्रीज और डिक्रीज, जिसके कारण उसका डेविएशन एंगल चेंज होता है. उसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि इसका पाथ ऑफ प्रोपेगेशन क्या हो गया? चेंज हो गया. Here two laws of refraction of light. First,
the incident ray, the refracted ray, and the normal to the interference of two transparent media at the point of incidence all lie in the same plane. In simple language, incident ray, refracted ray, and normal all lie in the same plane. Second point, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant. This law is also known as Snell's law of refraction. In symbol, we write down sine I upon sine R is equal to constant. Here sine is one type of trigonometry ratio. Now, the refractive index. When we saw the property of refraction, one physical quantity is also used, that is known as refractive index. Now, question arises, what is refractive index? Refractive index is the ratio of two velocity of light in one medium to its velocity in other medium. अभी हमने पढ़ा कि जब आपकी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो उसकी वेलोसिटी यानी स्पीड चेंज हो जाती है. इस स्पीड के रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू इट्स वेलोसिटी इन स्पेसिफाइड अदर मीडियम. अगर आपकी एक मीडियम फिक्स हो कि वो वैक्यूम है और दूसरा आप कोई भी मीडियम ले सकते हो, तब हम उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं. बी केयरफुल, अगर आपका दोनों मीडियम में से कोई भी मीडियम वैक्यूम नहीं है तब उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे. अगर एक मीडियम आपका फिक्स्ड है कि वो वैक्यूम यानी एयर मीडियम है तब उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं. Light travel the fastest in vacuum with the highest speed, that is 3 into 10 raised to 8 meter per second. Light सबसे fastest vacuum में travel करती है. That speed in this medium 3 into 10 raised to 8 meter per second. Consider a ray of light traveling from medium 1 into medium 2. Suppose कर लो एक light है जो medium 1, यहाँ पे medium 1 क्या है हमारा? Air. ट्रेवल इन अदर मीडियम, मीडियम 2 में हमने क्या लिया है? ग्लास. तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. कंसीडर अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 इनटू मीडियम 2 एज ऑन इन फिगर, जो हमने लास्ट फिगर में देखा था. सपोज इन फर्स्ट मीडियम इट्स वेलोसिटी इज v1 एंड इन मीडियम 2 इट्स वेलोसिटी इज v2. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 गिवन बाय द ratio of speed of light in medium 1 and the speed of light in medium 2. This is actually represented by symbol n21. N means here refractive index. N is the symbol of refractive index. Okay. अब equation wise कैसे सोन करेंगे हम? n21. Okay. n21 का मतलब क्या हुआ? The refractive index of medium 2 with respect to medium 1. Again I say n21 का मतलब हुआ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. और बट वेलोसिटी कैसे दिखाएंगे? v1 अपॉन v2. v1 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड v2 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. इफ यू वांट टू से इन अपोजिट वे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, देन वी रिप्रेजेंट n12. okay, little bit here difference. Then velocity ratio become v2 upon v1. If you find the absolute refractive index, it means one medium is surely vacuum. In vacuum, speed of light symbol is c. And other medium suppose कर लो light की velocity कितनी है आपकी? v. Then absolute refractive index is nm. Only we write down not the n12 and not n21. Only simple nm. It means एक मीडियम फिक्स आपका एयर यानी वैक्यूम है. Then nm equal to c upon v. Speed of light in air upon speed of light in the medium. Just see the chart. Here material medium is given and their refractive index also. Now our next topic is refraction by spherical lenses. We have two type of spherical lenses. First one convex lens, second one concave lens. For this purpose, we also have some important terms. First, center of curvature. Its symbol is C. Optical center symbol O and focus F.
Now just see here two figures. First figure is known as convex lens and second one is concave lens. Convex lens दो आपके अलग अलग spherical lens को मिलाकर बनाया गया है. This one the center of first spherical lens. This one and this one the center of second spherical lens. इसलिए इसमें दो center of curvature होता है C1 and C2. In the same way have two focus F1 and F2. ओके, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2F1 एंड 2F2 के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे. इन द सेम वे इन कॉनकेव लेंस टू स्फेरिकल लेंसेज आर यूज. सो हियर सेंटर ऑफ कर्वेचर दिस वन C1 एंड फोकस F1. O मीन्स ऑप्टिकल सेंटर. O इज द सेंटर ऑफ लेंस. O आपका क्या होगा, जो आपने कॉनकेव और कॉन्वेक्स ड्रॉ किया है उसके सेंटर को बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है, पूरे स्फेरिकल के सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. दोनों स्फेरिकल लेंस को मिलाकर जो आपका कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस बनेगा उसके सेंटर को बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर एंड इट्स सिंबल इज O. नाउ रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज. कुछ रूल्स हैं, बी केयरफुल. फर्स्ट रूल, अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस, लास्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ लिया था, इट इज अ प्रिंसिपल एक्सिस. अगर कोई इंसिडेंट रे आपके पैरेलल एक्सिस का पैरेलल है तो श्योरली वो किससे पास होगा, फोकस से. इन हियर आल्सो, बट बी केयरफुल, कॉन्वेक्स लेंस इज द कॉन्वर्जिंग लेंस. कॉन्वर्जिंग लेंस के मतलब लाइट बैंड होगी टू ईच अदर. और आपका कॉनकेव लेंस डाइवर्जेंस लेंस होता है, इसमें सभी लाइट एक दूसरे से डाइवर्ज्ड होती है, इसलिए इमेज फॉर्मेशन आपके अपोजिट साइड में होगा. सेकेंड, व्हेन अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. अगर वो प्रिंसिपल फोकस से पास हो तब दिस वन इंसिडेंट रे. अगर वो प्रिंसिपल फोकस से आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. थर्ड, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. अगर कोई एक लाइट ऑप्टिकल सेंटर से आती है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन भी कहाँ से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर, यानी वन स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा. इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस. व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी. जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो लाइन इंसिडेंट रे कैसा होता है, पैरेलल. फॉर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, जो भी लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ से पास आउट होगा, फोकस ऑफ द लेंस. यहाँ पे आपके दोनों इंसिडेंट रे मीट हुए, इट मीन्स इमेज फॉर्मेशन आपका कहाँ बना, F2. यू फाइंड आउट थ्री आंसर. फर्स्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. सेकेंड, आपका साइज एंड थर्ड वन इज नेचर. ओके, तो जहाँ पे आपके दोनों इंसिडेंट लाइट ज्वाइन होती है वहाँ पे बनता है आपका इमेज. इमेज आपके राइट साइड में बना, इसलिए इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड. इमेज कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड. साइज देखो, ये बहुत ही छोटी स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको बोलेंगे हाईली डिमिनिस्ड. पोजीशन, पोजीशन आपका कहाँ बना, एट F2. ठीक है, इस बार फोकस के नेम से रिप्रेजेंट करेंगे F1 और F2, तो आपका इमेज कहाँ पे बना, F2. ना नेक्स्ट पोजीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड 2F1. अगर आप ऑब्जेक्ट को 2F1 के बियॉन्ड रखो, सपोज यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा तो फर्स्ट इंसिडेंट लाइन हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. रूल के अकॉर्डिंग वो कहाँ से पास होगी, F से. सेकेंड इंसिडेंट लाइट कहाँ से लिया, ऑप्टिकल सेंटर, इसलिए इसका पाथ चेंज नहीं होगा. ये दोनों लाइन यहाँ मीट हुई, इसलिए इमेज फॉर्मेशन आपके इस पॉइंट पे बनेगा. ना इमेज नेम इज A', B'. ओके, अब सबसे पहले पोजीशन निकालो. पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बना, बिटवीन F2 एंड 2F2. नेचर कैसा बना, तो आपके राइट साइड में इमेज बना है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, रियल. अपोजिट यानी उल्टा बना है, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड. साइज कंपेयर कीजिए, दिस वन योर ऑब्जेक्ट साइज, दिस वन योर इमेज साइज. ओके, लिटिल बिट स्मॉलर, सो वी यूज द वर्ड डिमिनिस्ड. नाउ थर्ड सिचुएशन, when object is kept at 2F1. Exactly हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, 2F1. here सेम रूल, फर्स्ट लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये कहाँ से पास हुआ, आपके फोकस से.
सेकेंड लाइट इंसिडेंट रे कहाँ से पास करना है आपको? ऑप्टिकल सेंटर। देखो यहाँ पे आपके दोनों इंसिडेंट रे मीट हुए, यहाँ बना आपका इमेज। पहले पोजीशन फाइंड आउट करते हैं, तो आपका इमेज कहाँ बना? 2f2। साइज कंपेयर कीजिए, तो दोनों साइज एग्जैक्टली सेम है, तो हम लिखेंगे सेम साइज। नेचर इस साइड बना है, इसलिए वर्ड क्या यूज करोगे? रियल। और उल्टा बना है तो इन्वर्टेड, यानी नेचर कैसा बना? रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ नेक्स्ट पोजीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन f1 एंड 2f1। इस बार ऑब्जेक्ट आपको f1 और 2f1 के बीच में रखना है। सेम रूल, फर्स्ट पैरेलल, और वो कहाँ से पास होगी? आपके फोकस से। सेकेंड आपको ऑप्टिकल सेंटर से लेना है। देखो इस बार लाइन यहाँ पे आपकी मीट हुई, इमेज बना a डैश b डैश। साइज देखो ऐसे क्लियर ही दिख रहा है, ऑब्जेक्ट साइज से बड़ा है, तो वर्ड क्या यूज करेंगे? एनलार्ज। पोजीशन बियॉन्ड 2f। नेचर कैसा बनेगा? तो ये भी राइट डायरेक्शन में है, तो आपका बना रियल, उल्टा है तो इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ नेक्स्ट पोजीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस। अगर फोकस पे यानी f1 पे रखोगे तब, तो फर्स्ट लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से पास होगा? फोकस से। सेकेंड आपको कहाँ से पास करना है? ऑप्टिकल सेंटर। अब देखो लाइन ड्रॉ करने के बाद आप फाइंड आउट करते हो कि दोनों लाइन क्या है? पैरेलल, यानी ये कहीं भी मीट नहीं होगा। तब आपका पोजीशन कहाँ लिखेंगे हम? तब जब लाइन पैरेलल होता है तो पोजीशन लिखते हैं एट इंफिनिटी। साइज कैसा होगा? तो वेरी लार्ज। और नेचर, तो सभी का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड आया है, तो हम इसका भी सपोज करते हैं। नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट पोजीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन f1 एंड o मीन्स ऑप्टिकल सेंटर। जैसे यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा, फर्स्ट लाइन सेम रूल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और वो कहाँ से पास होगा? आपके फोकस से। सेकेंड लाइन कहाँ रखेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। अब इस डायरेक्शन में देखो, ये दोनों लाइन एक दूसरे से डाइवर्ज हो रहा है। डाइवर्ज मतलब एक दूसरे से दूर जा रहा है। इट मीन्स इस डायरेक्शन में आपकी लाइन मीट नहीं होगी, तो हम बैक साइड जाएंगे और आपका यहाँ पे लाइन मीट हुआ। ओके, अब बताओ पोजीशन, तो हम लिखेंगे ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिधर ऑब्जेक्ट था उधर ही आपका क्या बना? इमेज। नेचर, तो इस बार लेफ्ट साइड में आपका इमेज बना है, तो हम वर्ड यूज करेंगे वर्चुअल। सीधा बना है तो इरेक्ट, यानी नेचर बोलोगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज कैसा है? एनलार्ज। यहाँ पे आपके 6 इमेज बाई कॉन्वेक्स लेंस कंप्लीट हुआ। इट इज द टेबल ऑफ 6 इमेज। देखो यहाँ पे आपके पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज और नेचर मेंशन किया हुआ है। नाउ नेक्स्ट आवर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस के थ्रू केवल 2 टाइप का इमेज फॉर्म होता है। फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी। अगर आप कॉन्केव लेंस में ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखे हो तो इमेज कैसा बनेगा? तो कॉन्केव लेंस में लाइट डाइवर्जेंट होता है, इसलिए इस डायरेक्शन में लाइट कभी भी मीट नहीं होगी। तब हम अपोजिट डायरेक्शन में डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये लाइन देखो यहाँ मीट हुई, तब आपका इमेज कहाँ बना? एट फोकस f1। सेम साइड ही बना है तो उसका बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज कैसी होगी? हाईली डिमिनिश, पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर। सेकेंड पोजीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दो। सपोज दिस वन योर ऑब्जेक्ट, फर्स्ट लाइन आपका पैरेलल होगा और वो डाइवर्ज हो जाएगा, इस साइड के फोकस पे पास आउट नहीं कर सकता, तो हम अपोजिट साइड के फोकस से पास करेंगे। सेकेंड लाइन श्योरली कहाँ से पास आउट होना चाहिए? ऑप्टिकल सेंटर। देखो दोनों लाइन यहाँ पे मीट हुई, यहाँ पे बना आपका इमेज, तो हम पोजीशन क्या बोलेंगे? इमेज कहाँ बना? तो बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। साइज कैसे बने? तो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में आपकी इमेज की साइज काफी स्मॉल है, तो बोलेंगे डिमिनिश्ड। और सेम साइड बना, इसलिए बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। नाउ नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ लेंस सिमिलर टू दैट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। मिरर में जो हम मैग्निफिकेशन की प्रॉपर्टी पढ़े थे, सेम प्रॉपर्टी आपके लेंस के लिए यूज होता है। इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके,
मैग्निफिकेशन का सिंबल होता है m, सो फॉर्मूला क्या बना, m इक्वल टू h डैश अपॉन h। मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला में हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस भी ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का सिंबल होता है u, इमेज डिस्टेंस का सिंबल होता है v। सो m का फॉर्मूला बना v अपॉन u। इट मीन्स यू हैव टू फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h and m equal to v upon u. Power of lens. The power of lens is defined as the reciprocal of its focal length. Power of lens आपके reciprocal किसका होता है, focal length का। It represented by the letter P. Symbol क्या है आपका P. Power of lens or focal length given f by, अगर फॉर्मूला पूछे तो आप क्या लिख सकते हो, P is equal to 1 upon f. P means power, f means focal length. The SI unit, पावर ऑफ लेंस का SI यूनिट होता है डायोप्टर, सिंबल D. If f is expressed in meter, then power is expressed in diopter. ठीक है, बी रिमेंबर, आपको फोकस हमेशा किस में रखना है, मीटर में, तो पावर किस में निकलेगा, डायोप्टर में। 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ ए लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। इन शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हो 1D इक्वल टू 1 मीटर, इट मीन्स m minus 1. You may note that power of a lens is positive and that of a concave lens is negative. Convex lens का पावर हमेशा पॉजिटिव होगा और कॉन्केव लेंस का पावर नेगेटिव होगा। Here your chapter is over. In next video, I will explain some numerical questions of examples and exercise.